हिंदुस्तान में लहलाते खेतों और अनाज उगलती इन फसलों के शराओं में 94 साल के इस शख्स की आत्मा बसती है। हिंदुस्तान के खेतों में हरियाली और ये खुशहाली इसी शख्स की वजह से गुलजार है। दिल से, दिमाग से, मन से, आत्मा से अपना सब कुछ इस शख्स ने इन खेतों पर बलिदान कर दिया। तभी पूरी दुनिया इन्हें हिंदुस्तान में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जानती है। नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। My aim is to how to overcome the problem of malnutrition. The United Nations has started, I was partly responsible for it, a program called Zero Hunger. It was based upon a program which the former president of Brazil, Mr. Lula, started. No hunger at all, the Zero Hunger Challenge. I devote a lot of my time to achieving the Zero Hunger Challenge. I devote a lot of my time in helping to overcome malnutrition through finding agricultural remedies for major nutritional malady. I make a malady remedy analysis. This is the agricultural potential, this is the problem, iron deficiency, iodine deficiency. How do we, what we call biofortified plants. For example, the common moringa is so rich in nutrients. So how do you promote knowledge of nutrition literacy, overcoming? So I would say, in one word, my research interests are integrating agriculture and nutrition and identifying methods of overcoming malnutrition through farming, through agriculture, through what I call nutrition garden. 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश आज, जिन्होंने न सिर्फ किसानों में बल्कि उनके मरते खेतों में नई जान फूंकी और एक नई क्रांति को जन्म दिया। Improvement of a product, it was a yield revolution, which was called a green revolution. So it created a lot of self-confidence in India's agricultural capability. We thought we are a nation, we can't feed ourselves. People said you ought to lead a ship-to-mouth existence, and one ship has to come before you can feed people. And all that image of India was changed. Suddenly India was known all over the world as the land of the green revolution. जनसंख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करने वाले भारत जैसे देश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वामीनाथन ने जो सपना देखा, उसे पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और आज भी उनकी बढ़ती उम्र खेत खलिहान और किसान के लिए सपने देखती है। Today the country has enough production and enough food, but our three problems following the Green Revolution. One is the ability of people to buy the food, in other words the purchasing power. With the result, 1/3 of the hungry people in the world are still in India. We have a large number of malnourished children, hungry people and so on. Secondly, there were environmental problems. Then came also the social problems in relation to the younger generation. We are a land of the youth. The demographic dividend, as it is called, is when the youth participate. More and more young people didn't want to take agriculture, and agriculture became economically not very rewarding. लिविंग लेजेंड स्वामीनाथन की महानायकी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि स्वामीनाथन एक सोच है। The beauty of Professor Swaminathan is that he would mix with people in all walks of life. He wouldn't make a distinction between the lowest cadre and the highest cadre. He was at equal ease in moving with people and giving them, he would listen to them very patiently, as if he has all the time in the world. Whereas the fact is, he was always a busy man. He had to be on toes. Notwithstanding that, he would spend time with everybody, even a kind of janitor or a person who is a gardener, he would spend time with them. भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन पेशे से वैज्ञानिक हैं, मन से पर्यावरण प्रेमी, दिल से दार्शनिक और इच्छा से शिक्षक हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। एक कर्मठ सिपाही की तरह स्वामीनाथन ने अपनी जिंदगी को जिया और जी रहे हैं। आज भी सुबह 5 बजे उठकर
देर रात तक काम करना उनकी आदत में शुमार है। स्वामीनाथन संगीत के शौकीन हैं। दक्षिण के संगीतज्ञ त्यागराज का उन पर गहरा असर दिखता है। त्यागराज के गीतों में स्वामीनाथन को जिंदगी की प्रेरणा दिखती है। लिखने के शौकीन स्वामीनाथन ने बहुत कम उम्र में ही रूरल इंडिया पत्रिका में लेख लिखा था, जो लंबे समय तक चलता रहा। आज भी उनके अनगिनत लेख भारतीय और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। बचपन से पढ़ने में तीक्ष्ण स्वामीनाथन का भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ, लेकिन उनकी रुचि खेती किसानी में थी, इसलिए उन्होंने अपनी कर्मभूमि के लिए खेत और खलिहान को चुना। 49, I appeared for a competitive examination, was offered by the Home Ministry a job in the Indian Police Service because my rank. ये दौर द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से पूरी दुनिया की रीढ़ तोड़ रहा था, लेकिन उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था, लिहाजा आत्मनिर्भरता जैसी सोच उस समय हिंदुस्तान के किसानों के लिए सिर्फ उनके खेतों तक सीमित थी। लेकिन आजादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ी। सबसे पहली चिंता पूरे देश के पेट की आई। मुट्ठी भर लोग खेत में हल जोतकर पूरे देश की बढ़ती जनसंख्या का पेट कैसे पाल सकते थे? न तकनीक थी, न अनुसंधान थे। हिंदुस्तान के किसान और वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर खेत में फसलों की पैदावार बढ़ाने का जतन कर रहे थे, लेकिन भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एक योद्धा हिंदुस्तान में अनुसंधान पर संघर्ष कर रहा था, और वो थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। Peace cannot prevail. Long ago, the Roman philosopher Seneca said that where there is hunger, people will be angry, there will be no peace, and so on. वहीं साथ ही साथ दुनिया के दूसरे कोने में एक दूसरी शख्सियत भी दुनिया भर में आई भूखमरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। ये 1960 का दौर था। नॉर्मन ई बोरलॉग के खेती पर प्रयोग दुनिया को हैरान कर रहे थे। मेक्सिको में फसलों के उत्पादन में तेजी से इजाफा हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र और खाद्य कृषि संगठन ने आगाह कर दिया था कि 1960 से 2001 तक हिंदुस्तान में जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। अमेरिका जैसे देशों से हिंदुस्तान में अनाज का आयात हो रहा था, लेकिन सवाल था कब तक। इस चिंता ने सरकारों को तो परेशान किया ही, लेकिन वो लोग चौकन्ने हो गए जिन पर हिंदुस्तान की खेती की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी थी। At the time I started my work, the late 1950s, early 60s, there was a lot of pessimism in the country about agriculture because people felt our farmers are not advanced enough, they are not taking to new technology. Our extension services were poor, our research service was poor, no new technologies are available. So there was a general feeling that we are destined to import food under PL 480 program of the United States to feed our people. So the first thing is how to create a new confidence in India's agricultural capability. That was my challenge. How do you create a confidence? इसी बीच बोरलॉग 1963 में अपने दोस्त ग्लेन एंडरसन के साथ भारत दौरे पर आए। मैक्सिको के खेतों में अपनी जादूगिरी दिखाकर बोरलॉग खेती के महानायकों में अपनी पहचान बना चुके थे। गेहूं की संकर किस्मों के प्रयोग को हिंदुस्तान में आजमाना था। जिम्मेदारी M.S. स्वामीनाथन के कंधों पर थी। उस समय स्वामीनाथन देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उन्नत किस्मों को बोने का सिलसिला शुरू हुआ, और जो नतीजे आए उसने हिंदुस्तान को उम्मीद की किरण दिखा दी, और यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान में हरित क्रांति का दौर। A very dynamic minister, Mr. C. Subramaniam, Bharat Ratna, who was given later, he came and he was a great advocate of science in agriculture. So he approved my proposal for national demonstration. We put up demonstrations all over North India in wheat and rice,
and they gave 4 to 5 times the yield of normal, and immediately the word spread like wildfire. What was a small government program became a mass movement. Unless it's a mass movement, you can't call it a revolution. It's only evolution, 3%, 2%. So a small government program, farmers convert into a mass movement. एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम जिले में हुआ था। स्वामीनाथन के पिता एक प्रसिद्ध सर्जन थे। परिवार मध्यम वर्गीय था। इसे दुर्भाग्य कहीं या कुछ और, लेकिन जब स्वामीनाथन महज 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह चल बसे। स्वामीनाथन की जिंदगी में आया ये सबसे पहला और बड़ा तूफान था, लेकिन वो इससे हिले नहीं। स्वामीनाथन ने पढ़ाई जारी रखी। 1944 में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन स्वामीनाथन को खेत खलिहान और किसान से बेहद प्यार था। शायद ये बात उनके दिलो दिमाग में थी कि वो किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने 1947 में कोयम्बटूर कृषि कॉलेज से कृषि में भी बीएससी की डिग्री हासिल की। 1949 में स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान के आनुवांशिकी और पादप प्रजनन विभाग में शोध सहायक हो गए। I was a student of the Maharaja's College, Thiruvananthapuram, during 1940 to 44, where I did my BSc degree. At that time I decided that I will go to agriculture because my late father, Dr. Shamba Shivan, was an eminent surgeon and he had built a big hospital, but he died suddenly in 1936. My mother wanted me to go to medical situation, but then there was a great Bengal famine in 1942-43 and Mahatma Gandhi had called for the Quit India movement. I felt that the way in which I can serve for independent India was through agriculture. So I shifted from the medical college to the agricultural college at Coimbatore and did my BSc AG. Then in 1944 to 47 was the agriculture college. स्वामीनाथन ने जिस लगन का परिचय दिया वो बहुतों को प्रभावित कर गया और 1952 में स्वामीनाथन ने कैम्ब्रिज के एग्रीकल्चर स्कूल से आलू की फसल पर पीएचडी की। लेकिन जिन्हें मंजिलों की तलाश होती है वो न तो रुकते हैं और न ही थकते हैं। स्वामीनाथन ने नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में आनुवांशिकी विभाग के यूनेस्को फेलो के रूप में 1949 से 50 के दौरान काम किया। फिर 1952 से 1953 में उन्होंने अमेरिका के विस्कोसन विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी विभाग में शोध सहायक के रूप में काम किया। लेकिन तमाम जगहों पर छोटी छोटी नौकरी करने में उन्हें अपनी मंजिल से भटकाव नजर आने लगा। वो ऐसी नौकरी करना चाहते थे जिसको करते हुए वो अपना पूरा ध्यान शोध पर लगा सके। उस समय आलू पर शोध कार्य करने वालों की आवश्यकता नहीं थी। लिहाजा स्वामीनाथन ने IRRI यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में चावल की जापानी और भारतीय किस्मों पर शोध शुरू किया। लेकिन 1965 में स्वामीनाथन को पूसा में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में नौकरी मिल गई। यहाँ उन्हें गेहूं पर अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ स्वामीनाथन का शोध चावल पर भी चलता रहा। पूसा के वानस्पतिक विभाग में स्वामीनाथन ने किरणों के विकिरण से प्रयोग शुरू किए और गेहूं की कई किस्में विकसित की। स्वामीनाथन ने उन वैज्ञानिकों को गलत साबित करवाया जो ये कहते थे कि एटमी किरणों के दम पर गेहूं पर शोध कार्य नहीं हो सकता। To the radiation effects on biological systems and so on. You might wonder how an agricultural scientist went into radiation biology. But today if I am a radiation biologist, it's because he introduced me to radiation biology way back in 60s. 1970 में गुजरात के आणंद स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने उन्हें डीएससी की उपाधि दी। 1969 में डॉक्टर स्वामीनाथन इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के सचिव बनाए गए। इसके बाद वो नेशनल साइंस एकेडमी के फेलो मेंबर भी बनाए गए। आपको बता दें कि इससे पहले MS स्वामीनाथन
1963 में हेग में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। 1954 से 1972 तक डॉक्टर स्वामीनाथन ने कटक और पूसा के कृषि संस्थानों में अद्भुत काम किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान भी किया और शिक्षण भी किया, साथ ही साथ प्रशासनिक दायित्व को भी बखूबी निभाया। Whichever positions he has held, he has always made it a point that how do I serve the farming community to improve their quality of life. I am very, very proud about it. As I said, he has served with great distinction for more than 40 years. And I would also here like to mention, as you are aware, India had lot of problems about 50 years ago as far as agricultural productivity is concerned. Dr. Swaminathan was the great scientist who brought about the agricultural green revolution. With the result, India has become not only self-sufficient, India has got millions of tons of food grains in store. अपने काम से स्वामीनाथन ने सभी को प्रभावित किया और भारत सरकार ने उन्हें 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया। इसके साथ ही वो भारत सरकार में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी बनाए गए। बौनी किस्म के गेहूं पर प्रयोग और उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी ने हिंदुस्तान में खेती की शक्ल ही बदल कर रख दी और इसका पूरा श्रेय स्वामीनाथन के प्रयासों को गया। स्वामीनाथन की कामयाबी की खबर से उत्साहित नॉर्मन ई बोरलॉग 1971 में एक बार फिर भारत आए और स्वामीनाथन की कामयाबी देखकर खूब प्रसन्न हुए। And therefore it was but fortunate that he was given the Nobel Peace Prize. Having got the Nobel Peace Prize, he felt that other agriculture scientists should be honored in the same way. And I think he had me in mind particularly. He went to the Nobel Foundation and requested them to start a Nobel Prize in agriculture. But the Nobel Foundation said that we can't start any prize which is not in the will of the Alfred Nobel. We can only follow his will. We can't start a new one. Then he started the World Food Prize, and I had the good fortune of being the first World Food Prize laureate. Today I serve as chairman of the selection committee for the World Food Prize. The World Food Prize has gradually become equivalent to a Nobel Prize in agriculture. In other words, he was not only content with getting recognition for himself, but he was very anxious that all other scientists, particularly young scientists, should be recognized, should be encouraged, and more people should be attracted to agricultural research and education. 1965 से 1971 तक डॉक्टर स्वामीनाथन IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे। इस दौरान गेहूं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हुए, जिससे उनकी तथा संस्थान की ख्याति पूरे विश्व में प्रशंसा की पात्र बनी। 1967 से 1968 में इस बात पर जोर दिया गया कि योजना का दायरा सिर्फ एक फसल तक ही न रखा जाए, बल्कि एक साथ एक साल में अधिक से अधिक फसलें उगाकर पैदावार और बढ़ाई जाए। इसके लिए एक और अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग बढ़ाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ खेती करने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग किया गया। स्वामीनाथन ने बाजरा, मकई, ज्वार और चावल की कई नई किस्मों का विकास किया। गर्मी के लिए मूंग, लोबिया की फसलें तैयार की गईं। स्वामीनाथन की देखरेख में दिल्ली के आसपास के कई गांव विकसित किए गए। The largest producers of food, over 260 million tons of food grains, over 260 million tons of fruits and vegetables, and over 140 million tons of milk, which is the largest milk production in the world. So on one hand we have that happy news of large production capacity. On the other hand, the economics is getting adverse. The cost, the benefit, the risk involved, with the result we see farmer suicides. Therefore we have both the pluses and the minus, but nevertheless our agriculture, as I said earlier, is at the crossroads. We can still correct many of our problems through appropriate public policy. डॉक्टर स्वामीनाथन को अप्रैल 1979 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। साल 1982 तक वो आयोग में रहे। 1983 में स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मनीला के महानिदेशक बनाए गए, जहां उन्होंने
1988 तक अपना योगदान दिया। स्वामीनाथन फसलों के विकास के लिए अक्सर गांव-गांव जाते, किसानों से मिलते, समस्याएं सुनते, समाधान बताते, जिससे किसानों में एक नई उमंग का संचार हुआ। और इस तरह डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी अनुसंधान से भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता चला गया। यही स्वामीनाथन की क्रांति थी, जिसे आज हम हिंदुस्तानी हरित क्रांति कहते हैं।